Hello everyone and welcome to Success Station. So this is the second class of the chapter Relations and Function. और आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं that what is a relation, what is the domain of a relation, what is the range of a relation, what is codomain of a relation, and after studying all these topics we will solve a number of questions. Okay, so without any further delay, let's start the today's session. So today's first topic is relation. Relation क्या होता है? So a relation capital R from set A to B is a subset of the Cartesian product of A and B. So the very basic point of a relation, it is a subset of the Cartesian product of A and B. Okay, then इस relation को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक example लेते हैं. So यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने screen पे एक example. So let's start. सेट ए गिवन है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 5 एंड सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं दैट इज 5, 6 एंड 9. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल आर. ओके, अ रिलेशन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल आर. डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. ओके, देन ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये ऑलवेज मेंशन रहेगा दैट डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. मतलब ये सेट गिवन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ओके, देन क्वेश्चन में अगर ये मेंशन है दैट डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी परफॉर्म करना है. ओके, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में ये गिवन है दैट डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, देन व्हाट यू विल डू, यू विल परफॉर्म बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, क्वेश्चन में ऐसा भी गिवन हो सकता है दैट डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, then what you have to do, you have to perform Cartesian product A cross A. Also it may be given that define a relation from B to B, then in that case we will perform B cross B. Okay, so this was the first point that you need to remember while solving any question based on relation. Okay, यहाँ पे देखिए by capital R stands for relation is equal to x comma y. यहां आप देख सकते हैं. सो x comma y represents an ordered pair. Okay, such that the difference between x and y is odd. तो यहां पे आप देख सकते हैं एक रिलेशनशिप गिवन है. क्या गिवन है? एक रिलेशनशिप between the first element and the second element of the ordered pair. Okay, relationship क्या है? That the difference between the two elements, that is the first and the second element. Okay, then difference यहाँ पे given है. then आपको क्या करना है, x minus y भी आप कर सकते हो, y minus x भी परफॉर्म कर सकते हो. डिफरेंस का मतलब होता है बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. ओके, देन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज ऑड आना चाहिए. ओके, क्या आना चाहिए? ऑलवेज ऑड आना चाहिए. कॉमा x belongs to capital A means x is an element that belongs to the set A and y is an element that belongs to the set B. Okay, तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा इस क्वेश्चन में. सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B. I will perform Cartesian product A cross B because it is given over here that define a relation from A to B. Okay, that's why we have to perform Cartesian product A cross B. Then when we will perform Cartesian product A cross B, then ordered pairs will be present here, and in this order pair the first element will be from set A and the second element will be from set B. Understood? तो यहां से देखिए सेट A से हम 1 सेलेक्ट करेंगे और B से 5, फिर यहां से 1, फिर यहां से 6, फिर यहां से 1, फिर यहां से 9. क्लियर है? लास्ट क्लास में ये चीज तो हम लोगों ने सॉल्व किया ही था. कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है. 1, 9. आफ्टर दैट 2, 5, 2, 6 एंड 2, 9. 2, 5, 2, 6 एंड 2, 9. आफ्टर दैट 3, 5, 3, 6 एंड 3, 9. 3, 5, 3, 6 एंड 3, 9. और सेट ए में देखिए एक ही एलिमेंट बचा हुआ है दैट इज 5. सो 5, 5, 5, 6 एंड 5, 9. 5, 5,
5,6 and 5,9. Okay, so first step, that is the Cartesian product of two sets A cross B हमने परफॉर्म किया. Now we have to find out a relation. तो सबसे पहला पॉइंट क्या था रिलेशन में? रिलेशन इज अ सबसेट. रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. मतलब रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, इट मीन्स रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर्स ही प्रेजेंट होंगे. सो कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हम यहां से सिलेक्ट करेंगे और कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? यहां पे देखिए एक रिलेशनशिप गिवन था ना बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर. उसी के हेल्प से हम डिसाइड करेंगे दैट कौन से ऑर्डर्ड पेयर को हम रिलेशन आर में इंक्लूड करेंगे और कौन से ऑर्डर्ड पेयर को हम रिलेशन आर में इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके, देन व्हाट वाज द रिलेशनशिप? डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई. ओके, इट मीन्स आप वाई एक्स माइनस वाई भी परफॉर्म करो या आप वाई माइनस एक्स भी परफॉर्म कर सकते हो. मुझे सिर्फ डिफरेंस चाहिए. डिफरेंस में क्या करते हैं हम? बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. ओके, वो क्या होना चाहिए? वो ऑड नंबर आना चाहिए. ओके, देन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर पे. देखिए 1,5. सो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करिए. 5 - 1 इज व्हाट? 4. सो 4 एक इवन नंबर है. देन वी कांट सेलेक्ट दिस ऑर्डर्ड पेयर. आगे बढ़िए. 1,6. सो 6 - 1 क्या होता है? 5. एंड 5 इज व्हाट? 5 इज एन ऑड नंबर. देन वी हैव टू सेलेक्ट दिस ऑर्डर्ड पेयर. 1,9. So bigger number is 8 and smaller number is 1. So 9 - 1 is 8 and 8 is an even number, so we will not select it. Next 2,5. So 5 - 2 is 3. 3 is an odd number, so we will select this ordered pair. 2,6. So 6 - 2 is what? 4. So 4 is an even number, so we can't select this. 2,9. So 9 - 2 when you will perform, then the answer is 7. So 7 is an odd number, so we have to select this ordered pair. Next ordered pair is 3,5. सो डिफरेंस परफॉर्म करिए. 5 - 3 कितना? 2 होता है एंड 2 एक इवन नंबर है. देन हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे. 3,6. ओके, सो 6 - 3 आप जब परफॉर्म करोगे तो 3 आता है. सो 3 इज एन ऑड नंबर, सो वी विल सेलेक्ट दिस. 3,9. ओके, दिस इज द नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर. सो 9 - 3 is 6 and 6 is an even number, so we can't select this. Next is 5,5. So 5 - 5 is 0 and 0 is not an odd number. Then we can't select this. Next is 5,6. So 6 - 5 is 1 and 1 is an odd number. So we will select this ordered pair. Last ordered pair को भी देख लीजिए. 5,9. So 9 - 4 is how much? 4. And 4 is what? 4 is an even number. So we can't select this. So we have rejected the last ordered pair also. So जो ordered pairs हमने select किए उसे हम यहाँ पे लिखते हैं. 1,6, 2,5, 2,9, 3,6 एंड 5,6. ओके, तो यहां पे देखिए रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया. अभी आप लोगों को समझ आ रहा होगा दैट वाई रिलेशन इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि यहां पे देखिए जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पे प्रेजेंट है वो ऑलरेडी ए क्रॉस बी में प्रेजेंट थे. इट मींस ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन आर is a part of A cross B, that is Cartesian product of A and B. That's why पहला पॉइंट ये मेंशन था that relation R is a subset of A cross B. क्लियर है ये पॉइंट? नाउ इसी चीज को हम लोग एरो डायग्राम के हेल्प से भी रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए इस फर्स्ट फिगर को देखिए. दिस रिप्रेजेंट सेट A एंड दिस सेकंड फिगर रिप्रेजेंट्स सेट B. ओके, सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स. दैट इज 1, 2, 3 and 5. सेट बी में 3 एलिमेंट्स 5, 6 and 9. ओके, देन यहां पे भी हमें क्या करना है? रिलेशन आर डिफाइन करना है. देन रिलेशन आर में भी क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स ही आएंगे. बट कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? इसके लिए हमें एक रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर. तो यहां पे वो रिलेशनशिप क्या है? x - y या y - x आप जब परफॉर्म करो देन वो एक ऑड नंबर आना चाहिए. ओके, इस रिलेशनशिप को जो ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करेगा उसी ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे. तो एरो डायग्राम में हम देखिए कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए 1 यहां पे है. ऑब्वियसली हम जब यहां पे ये क्या है? ये भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना. तो
फर्स्ट एलिमेंट हम लोग सेट ए से सेलेक्ट करेंगे और सेकंड एलिमेंट सेट बी से सेलेक्ट करेंगे। तो यहां से देखिए सेट ए से 1 सेलेक्ट किया हमने और सेट बी से 5, सो 1,5 है, सो 5 - 1 अब परफॉर्म करो 4 आता है, तो 4 एक इवन नंबर है, तो 1,5 को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? उसके बाद यहां से हमने 1 सेलेक्ट किया और यहां से 6, सो 6 - 1 इज व्हाट 5, 5 इज एन ऑड नंबर, देन इसे हम एरो डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए 1,9, सो 9 - 1 इज व्हाट 8, सो इट इज एन इवन नंबर, सो वी विल नॉट सेलेक्ट इट। आगे देखिए 2,5, so 5 - 2 is 3, so yes it is an odd number, so we will select this also. Clear? Now 2,6, so 6 - 2 when you will perform then it is equal to 4, so 4 एक even number है, so we can't select it because question में mentioned है that difference between x and y must be odd number. Now 2,9, so 9 - 2 is what 7, 7 is an odd number, so we will select this. Clear? 3,5, so 5 - 3 is 2 and 2 is an even number, so we will not select it. 3,6, 6 - 3 is what 3 and 3 is what 3 is an odd number, so we will select this. Now 3,9, so 9 - 3 is what 6, 6 क्या even number है odd number है? Obviously it is even number, so we will not select it. अभी यहाँ पे देखिए सेट ए में एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, that is 5, so 5,5 देखिए, तो डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। 5 - 5 0 होता है एंड 0 इज नॉट अ ऑड नंबर, सो वी विल नॉट सेलेक्ट इट। 5,6 ओके, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए डिफरेंस मतलब बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो 6 - 5 इज 1 एंड 1 इज एन ऑड नंबर, सो वी विल अगेन सेलेक्ट दिस। ओके, क्लियर है? नाउ एक ही बचा है 5,9, तो इसे भी चेक कर लीजिए, तो 9 - 5 आपका 4 होता है, तो 4 इज एन इवन नंबर, so we will not select it. Okay, so यहाँ पे देखिए हमने इस रिलेशनशिप को, इस रिलेशन को that was denoted by the letter capital R, इसे हमने एरो डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो एक रिलेशन को डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं। देखिए ये कौन सा फॉर्म हुआ? दिस इज व्हाट, दिस इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हुआ ना, ये ब्रैकेट हमने ओपन किया, उसके बाद एलिमेंट्स लिखे और उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ? रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। और ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ? एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। इसे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। ओके, नाउ रिलेशन का एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, उसे भी हम लोग देखते हैं। नाउ ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का, दैट अ रिलेशन that is denoted by the letter capital R from set A to B is a subset of the Cartesian product of A and B. Now what is the next point? The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. ये चीज तो मैंने भी प्रूव करके भी दिखाया आप लोग को एक एग्जांपल के हेल्प से, दैट सबसेट लाइक A cross B में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आते थे। ओके, मान लेते हैं 1 3 2 3 3 5। ओके, और रिलेशन दिस इज व्हाट, दिस इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी। यहां पे भी इस रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर्स ही प्रेजेंट होंगे, बट कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम ये कैसे करते थे? एक रिलेशनशिप गिवन होता था। अभी हमने जो एग्जांपल लिया वहां पे कौन सा रिलेशनशिप गिवन था? डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई। एक्स जहां पे फर्स्ट एलिमेंट था और वाई सेकेंड एलिमेंट था, दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस जो है वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है, ये रिलेशनशिप गिवन है तभी हम लोग यहां पे ऑर्डर्ड पेयर्स को चूज कर सकते हैं। मतलब कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन आर में आएंगे और कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं आएंगे। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट अ सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। यही रिलेशनशिप का मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप क्या था? x माइनस वाई या y माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो ऑड होना चाहिए, और वो रिलेशनशिप किनके बीच में होना चाहिए? बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो एक एक पॉइंट क्लियर हो गया ना सारा। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया, एक सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन भी होता है, उसे भी देखते हैं। पहले आप ये देखिए,
दैट इफ ए कॉमा बी, यहां पे देखिए इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर। आर यहां पे क्या बोल रहा है? इट इज अ रिलेशन। इफ ए कॉमा बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर दैट इज अ पार्ट ऑफ अ रिलेशन आर, सो दिस इंप्लाइज ए कैपिटल आर बी। देखिए इसका मतलब क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब स्मॉल ए is an first element of the ordered pair और small b is the second element of the ordered pair. Related मतलब दोनों elements के बीच में एक relationship given होना चाहिए। ओके, यहाँ पे वही चीज mentioned है। देखिए A is related to B. ओके, some relationship must be given between the first element and the second element of the ordered pair. ओके, और इसे देखिए हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते कैसे हैं? कैपिटल R इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ए कॉमा बी, एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है सच दैट स्मॉल ए कैपिटल आर बी। यहां पे आप क्या देखिए, स्मॉल बी होना चाहिए, कैपिटल बी हमने लिख दिया है, स्मॉल ए कैपिटल आर स्मॉल बी। इसका मतलब क्या है? दैट स्मॉल ए इज एन एलिमेंट दैट इज रिलेटेड टू स्मॉल बी। स्मॉल ए इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड स्मॉल बी इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, वेयर स्मॉल ए इज व्हाट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब कैपिटल ए यहां पे एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इट मींस यहां पे देखिए कैपिटल बी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया रिगार्डिंग द रिलेशन। नाउ एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है रिगार्डिंग अ रिलेशन, उसे भी देख लेते हैं। दैट इफ ए कॉमा बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर दैट बिलोंग्स टू द रिलेशन, ओके, then in this the second element is called as the image of the first element and the first element is called as the pre-image of the second element. मान लेते हैं एक ordered pair relation में present था, okay? So इस ordered pair में देखिए 2 ये first element है और 3 ये second element है। then यहाँ पे जो second element होता है उस element को हम लोग फर्स्ट एलिमेंट का इमेज बोलते हैं। यहां पे अगर हम इसे लिखना चाहें देन व्हाट वी विल राइट, दैट 3 इज नोन एज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ऑल्सो यू कैन राइट दैट 3 इज नोन एज द इमेज ऑफ 2 ही फर्स्ट एलिमेंट है ना यहाँ पे। ओके, नाउ और इस फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस फर्स्ट एलिमेंट इज नोन एज द प्री इमेज ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। एंड फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 2 है, सो व्हाट वी कैन राइट दैट 2 इज नोन एज द प्री इमेज ऑफ 3। ओके, क्लियर है? तो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए रिगार्डिंग रिलेशंस। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। यहाँ पे देखिए सेट ए गिवन है जिसमें कितने एलिमेंट्स है? आई थिंक 6 एलिमेंट्स हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए आगे क्या गिवन है? डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम ए टू ए। इट मींस दैट यू हैव टू परफॉर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए पहले परफॉर्म करना है, उसके बाद हम रिलेशनशिप निकालेंगे, दैट इज रिलेशन निकालेंगे, रिलेशनशिप नहीं रिलेशन निकालेंगे। ओके, यहां पे देखिए रिलेशन भी डिफाइंड है सेट बिल्डर फॉर्म में, x कॉमा y, दिस रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। सो y इज इक्वल टू x प्लस 1 ही क्या है? दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। देन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, देखिए y इज इक्वल टू x प्लस 1 का मतलब क्या हुआ? y का वैल्यू x से एक ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। ओके, एक ज्यादा होना चाहिए। मान लेते हैं x यहां पे 1 होगा तो y 2 होना चाहिए, अगर x 2 होगा देन y 3 होना चाहिए। ओके, यहां पे देखिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट रिलेशन ही निकाल लेंगे। देखिए कैसे हम उसे कैसे करते हैं। सेट ए को पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकालना है, देन सेट ए को हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, देन रिलेशन हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां से हमने 1 सेलेक्ट किया और यहां से 1 सेलेक्ट करेंगे। तो 1 कॉमा 1, मैंने क्या बोला? y का जो वैल्यू है वो x से एक ज्यादा होना चाहिए, तो यहां पे दोनों वैल्यूज तो इक्वल है,
देन इस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए 1,2, देखिए y का वैल्यू क्या x से एक ज्यादा है, y यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और x यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन रिलेशनशिप क्या था, y इज इक्वल टू x प्लस 1। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं y का जो वैल्यू है वो x से एक ज्यादा है। सो 1,2 इस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए 1,3 हो गया, 1,4 हो गया, 1,5 एंड 1,6। क्या इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे? देखिए 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। देखिए इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में y का वैल्यू ज्यादा तो है, बट यहां पे देखिए 1,3 में ये 2 ज्यादा है x से, ये 3 ज्यादा है, यहां पे ये 4 ज्यादा है और यहां पे ये 5 ज्यादा है। सो वी विल नॉट सेलेक्ट दीज ऑर्डर्ड पेयर्स बिकॉज दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके, तो यहां पे हमने एक ही ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट किया। आगे देखते हैं, पहले हमने सेट, यहां से देखिए हमने 1 सेलेक्ट किया था। नाउ इस 1 के साथ इन सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स को बनाया। उसके बाद यहां से हम 2 सेलेक्ट करेंगे, 2,1। देखिए 2,1, तो यहां मैंने क्या बोला था दैट y का जो वैल्यू है वो x से एक ज्यादा होना चाहिए, बट यहां पे उल्टा हो गया है, x का वैल्यू y से एक ज्यादा हो गया। देन अगेन वी विल नॉट सेलेक्ट इट बिकॉज इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आगे देखिए 2,2, दोनों एलिमेंट्स तो इक्वल हो गए, अगेन इट इज नॉट सेटिस्फाइंग। नेक्स्ट देखिए 2,3, क्या इसे हम सेलेक्ट करेंगे? यस। देखिए सेकंड एलिमेंट 3 है और फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 3 2 से एक ज्यादा होता है, देन ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, आगे देखिए ना, अब 2,4, 2,5 और 2,6 को आप लोग सेलेक्ट नहीं करोगे बिकॉज अगेन वो सारे ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, हम लोग डायरेक्टली रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पे देखिए से ए में 6 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे भी 6 एलिमेंट्स। सो आप जब परफॉर्म करते कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप लोग का बहुत सारा टाइम जाता है वहां पे। ओके, देन इसी तरीके से आप लोग को टाइम भी बचाना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। देखिए 3,1 वी विल नॉट सेलेक्टेड, 3,2 अगेन वी विल नॉट सेलेक्टेड, 3,3 वी कांट सेलेक्ट। नाउ 3,4 देखिए इसे हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहां पे देखिए सेकेंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट बाय 1। उसके बाद 3,5 और 3,6 को सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है बिकॉज वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आगे देखिए 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 ये सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, बट एक ऑर्डर्ड पेयर हमें यहां से मिलेगा दैट इज 4,5। देखिए सेकेंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट बाय 1, so we will select this ordered pair. Okay, आगे देखते हैं 5,6, यहां पे देखिए एक ही ordered pair हमें और मिलेगा that is 5,6. So as you can see we have selected how many ordered pairs? 1, 2, 3, 4, 5. So all these ordered pairs are satisfying this condition. Which condition? That the value of y is equal to x plus 1. Okay, clear है? तो यहां पे हमने रिलेशन को डिफाइन कर लिया। क्लियर हो गया दो एग्जाम्पल के हेल्प से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज डोमेन ऑफ अ रिलेशन। सो डोमेन बहुत इजी एंड बहुत ही सिंपल है। द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर इज कॉल्ड एज द डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर। ओके, नाउ मान लेते हैं क्वेश्चन में ये गिवन है दैट फाइंड आउट अ डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर। देन पहले आप क्या करोगे? पहले आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे। देन यहां पे देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है। ओके, देन अगर हमें बोला जाए दैट फाइंड आउट द डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ आर, देन आप क्या करोगे? इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट्स है आप सिर्फ उन्हें सेलेक्ट कर लो, लाइक 1, 2, फिर से 2, 3 एंड 5। कितने एलिमेंट्स हमें मिले? 1, 2, 3, 5। देखिए 2 जो है वो 2 बार आया था यहाँ पे, बट वी विल नॉट इंक्लूड 2 अगेन एज देखिए 2 यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट था। देन वी विल नॉट इंक्लूड बिकॉज ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? ये रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है और रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर्स, देन यही हमारा डोमेन हो गया। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था।
Now what is the range of a relation? The set of all the second elements of the ordered pairs in a relation R is known as the range of a relation R. यहाँ पे देखिए एक relation given है, that is denoted by the letter capital R. Then if we have been asked that find out range of relation R, then वो भी हम find out कर सकते हैं. देखिए सेकेंड एलिमेंट्स को हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है. डोमेन में हमने क्या किया था, फर्स्ट एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, और रेंज में हम सेकेंड एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे. यहां से देखिए 6 सेलेक्ट करेंगे, 5 9 6 तो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया, देन फिर से हम नहीं करेंगे, और यहां फिर से देखिए 6 आया. तो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है रेंज में, 6, 5, 9. ओके, क्लियर है ये पॉइंट भी. रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही सिंपल है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन. कोडोमेन क्या होता है? इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू बी, देन अ होल सेट बी इज नोन एज कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन आर. देखिए कभी भी अगर रिलेशन डिफाइंड होता है तो ये मेंशन्ड रहता है दैट डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, या ऐसे भी गिवन हो सकता है दैट डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम बी टू ए. देन जो दूसरा सेट होता है ना, यहां पे देखिए ये यहां पे दूसरा सेट क्या है, बी. देन इस होल सेट बी को हम लोग को डोमेन बोलते हैं. दूसरे सेट को क्या बोलेंगे, को डोमेन. यहां पे देखिए अगर मान लेते हैं कोई रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम बी टू ए, देन यहां पे दूसरा सेट कौन सा है, ये ए है, तो यहां पे ए सेट को हम लोग को डोमेन बोलेंगे. ओके, क्लियर, बहुत ही सिंपल है को डोमेन भी. सो एक पॉइंट और आप लोग को याद रखना है दैट रेंज इज अ सबसेट. रेंज इज व्हाट, रेंज इज अ सबसेट ऑफ द को डोमेन. ओके, नाउ ऐसा क्यों होता है, ये सबसेट क्यों है, बिकॉज रेंज हम जब फाइंड आउट करते हैं तो देखिए हम कौन से एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, ओनली द सेकेंड एलिमेंट. सो सेकेंड एलिमेंट्स हमें कहां से मिलते हैं, दूसरे सेट से. मान लेते हैं कोई एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी. ओके, देन रिलेशन आर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो दूसरा एलिमेंट होता है दैट इज द सेकेंड एलिमेंट, दैट एलिमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेट बी. ओके, सो रेंज में जो सेकेंड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो भी हम सेट बी से लेते हैं. ओके, और कोडोमेन में भी हमने वही देखा दैट कोडोमेन इज द होल सेट बी. ओके, सेकेंड सेट जो होता है उसी दूसरे सेट को हम लोग कोडोमेन मान लेते हैं. Okay, so this point you have to always remember that range is a code subset of the codomain. Clear? Now next topic of today's class is total number of relations. Total number of relations. So इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. Let A and B be two non-empty sets. Then if A has P elements and B has Q elements, then A cross B will have P into Q ordered pairs. जैसे यहां पे NA क्वेश्चन में गिवन है that is P. NA is what? Number of elements in the set A, that is P. Now N of B भी given है that is Q, मतलब number of elements in the set B. Okay, then number of elements in A cross B is how much? That is the multiplication of these two numbers of variable, that is P into Q. अभी मान लेते हैं P का वैल्यू 3 होता और Q का वैल्यू 2 होता. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज व्हाट, 3 into 2 is equal to 6. Okay, so as we have studied that A cross B is what, A cross B is also a set. Okay, now A cross B भी एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होते हैं. देन एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स. ओके, एक सेट ए गिवन होता था जिसमें मान लेते हैं 3 एलिमेंट्स थे. देन अगर हमसे ये बोला जाए दैट फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिलेशंस, देन वो हम कैसे फाइंड आउट करते थे, एक फॉर्मूला होता था 2 to the power m, वेयर m वाज व्हाट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द सेट ए. सो कितने एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट्स. 2 to the power 3 इज व्हाट, 8. सो 8 सबसेट्स आर पॉसिबल. ओके, सो एज A क्रॉस B, देखिए A क्रॉस B भी एक सेट को रिप्रेजेंट करता है. देन A क्रॉस B में कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. उससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 to the power P into Q.
और P इंटू क्यू क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A क्रॉस B. A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स है? P इंटू क्यू. So we can find out the total number of subsets that is given by 2 to the power P into Q. बहुत ही सिंपल है. Now इसी चीज को हम लोग नंबर ऑफ रिलेशंस भी बोलते हैं, बिकॉज द डेफिनेशन और द फर्स्ट बेसिक पॉइंट ऑफ अ रिलेशन हमने क्या पढ़ा था? दैट रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज अ सबसेट. रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B, that is A क्रॉस B. ओके, सो एज रिलेशन इज अ सबसेट, तो यहां पे हमने नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट किए, तो इसी चीज को हम लोग नंबर ऑफ रिलेशंस भी बोलते हैं. ओके, क्लियर है? तो ये पॉइंट भी आप लोगों को रिमेंबर रखना, दैट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू B इज गिवन बाय 2 टू द पावर P इंटू Q. ओके, तो यहां पे P क्या है? P इज व्हाट? P इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A and Q is what? Number of elements present in set B. Okay, understood? Let's move towards the next topic, that is inverse of a relation. Inverse of a relation क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा होगा, उल्टा, just opposite of the relation. So if A and B are two non-empty sets and R is a relation from A to B. Okay, set A और B दो non-empty sets है और एक relation defined है from A to B. Then ये जो R टू दी पावर -1 है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग इनवर्स ऑफ अ रिलेशन बोलते हैं. मतलब इनवर्स ऑफ अ रिलेशन को हम ऐसे ही डिनोट करते. ओके, सो इफ R इज अ रिलेशन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू B, देन इनवर्स ऑफ अ रिलेशन विल बी डिफाइंड फ्रॉम B टू A. जस्ट अपोजिट, अगर रिलेशन R A टू B है, देन इनवर्स ऑफ अ रिलेशन आपका B टू A हो जाएगा. ओके, क्लियर है ये पॉइंट भी? नाउ यहां पे देखिए, R टू द पावर -1 मतलब ये आपका इनवर्स ऑफ अ रिलेशन है, इज इक्वल टू क्या गिवन है? B कॉमा A. B कॉमा A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सच दैट A कॉमा B. तो यहां पे आप देख सकते हैं B कॉमा A मेंशन्ड है और यहां पे जस्ट अपोजिट A कॉमा B मेंशन्ड है, दैट बिलोंग्स टू R. मतलब A कॉमा B एक ऑर्डर्ड पेयर है दैट इज प्रेजेंट इन द रिलेशन R. देन उसका मीनिंग क्या हुआ? दैट आप जब इनवर्स ऑफ अ रिलेशन फाइंड आउट करोगे, देन ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या हो जाएगा? स्वैपिंग हो जाएगा. मतलब जो सेकंड एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा और जो फर्स्ट एलिमेंट था वो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा. देख सकते हैं आप, यहां देखिए B was the second element, बट यहां पे देखिए B is the second element, सॉरी B is the first element. ओके, और यहां पे देखिए A was the first element और यहां पे भी आप देख सकते हैं दैट A यहां पे सेकंड एलिमेंट बन गया, मींस स्वैपिंग हो गया है. दोनों ने अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लिया, इतना ही याद रखना है आपको. ओके, ये पॉइंट भी वही चीज मेंशन है. देखिए, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल R, यहां पे देखिए स्मॉल b होना चाहिए बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्डर्ड पेयर. इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब A कॉमा B इज एन ऑर्डर्ड पेयर दैट बिलोंग्स टू द रिलेशन R. सो इसका मतलब क्या होता है? दैट B कॉमा A इज एन ऑर्डर्ड पेयर दैट बिलोंग्स टू द कौन सा रिलेशन? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, जस्ट अपोजिट. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं. नाउ इन द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट डोमेन ऑफ R. डोमेन ऑफ R मीन्स व्हाट? डोमेन ऑफ अ रिलेशन R का जो वैल्यू होता है वो रेंज के इक्वल होता है. किसके रेंज के इक्वल? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन के रेंज के इक्वल होता है. ओके, नाउ इसी का जस्ट अपोजिट, दैट अ रेंज ऑफ अ रिलेशन R is equal to domain of a inverse of a relation. Okay, ये R to the power -1 किसको रिप्रेजेंट करता है? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन. तो डोमेन जो R का होता है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन के लिए, और जो रेंज रिलेशन R का होता है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन के लिए. क्लियर है ये सारा पॉइंट्स? ओके, सो अब क्या करते हैं हम लोग? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आज के जो भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? इफ A is equal to 2, 4, 6, 9 and B is equal to 4, 6, 18, 27, 54, A belongs to capital A, मतलब small a is an element that belongs to capital A and small b belongs to capital B, मतलब small b is an element that belongs to the set B.
So find the set of ordered pairs such that A is a factor of B and A is less than B. Okay, तो यहां पे देखिए क्या रिलेशनशिप गिवन है, हमें ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करने हैं और यहां पे कुछ मेंशन भी है कंडीशन दैट A कॉमा B देखिए एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, क्लियर है. सो यहां पे कंडीशन क्या है दैट ये जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए सेकेंड एलिमेंट का एक फैक्टर होना चाहिए एंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन द सेकेंड एलिमेंट. यहां पे देखिए मेंशन भी है A is less than B. Okay, then what we will perform? We will find out only the ordered pairs, the set of all the ordered pairs. So देखिए सेट A में कौन से एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 9. सेट B में कौन से एलिमेंट्स हैं 4, 6, 18, 27, 54. तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हम लोग बनाएंगे उसमें जो पहला एलिमेंट होगा दैट विल बी फ्रॉम द सेट A एंड द सेकेंड एलिमेंट विल बी फ्रॉम द सेट B. बिकॉज ये चीज यहां पे मेंशन्ड है, देख सकते हैं आप दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B. ओके, क्लियर है ये सारा पॉइंट्स. देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स हम लोग बनाते हैं 2, 4. क्या ये ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे 2 is a factor of 4. Yes, 2 is a factor of 4 and 2 is less than 4. Yes, it is also less than 4. मतलब यहां पे देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए. देन वी विल सेलेक्ट दिस ऑर्डर्ड पेयर. आगे बढ़िए 2, 6 को हम सेलेक्ट करेंगे. यस, वी विल सेलेक्ट इट. देखिए 2, 6 हो गया. 2, 18, 2, 27 को क्या सेलेक्ट करेंगे हम लोग? नो, इसे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे. देखिए क्यों हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे. 2, 18. नाउ ये 2, 27 जो है यहां पे देखिए x इज लेस देन y. ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, दैट इज a इज लेस देन b. ये पहला वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया. बट इज 2 अ फैक्टर ऑफ 27? नो, 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 27. देन दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. देन वी विल नॉट इंक्लूड दिस ऑर्डर्ड पेयर. आगे देखिए 2, 54. 2, 54 क्या इस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे? यस, वी विल सेलेक्ट दिस ऑर्डर्ड पेयर. वाई? यहां पे देखिए ये A है ये B है. सो इज A लेस देन B? यस, 2 इज लेस देन 54. इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है एंड इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 54. सो बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड. देन वी विल इंक्लूड दिस ऑर्डर्ड पेयर. ओके, समझ आ गया आप लोगों को दैट इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है. उसके बाद देखिए 4, 4 को क्या हम सेलेक्ट करेंगे? देखिए 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4, दैट इज तो ओके. बट क्या इस दूसरा कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है? ये जो पहला एलिमेंट है इस दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए. मींस 4 शुड बी लेस देन 4. क्या ये पॉसिबल है? 4 इज इक्वल टू 4. सो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. आगे बढ़िए 4, 6. देखिए 4 इज लेस देन 6. ये तो ओके है, बट क्या 4 6 का फैक्टर है? नो, इट इज नॉट अ फैक्टर. नेक्स्ट 4, 18. नो, 4 is not a factor of 18. 4, 27. 4 is a factor of 27. No, it is not a factor. After that, एक और है 4, 54. क्या 4 54 से लेस है? यस, ये कंडीशन तो ट्रू है दैट 4 is less than 54. बट क्या ये इसका फैक्टर है? डिवाइड करके देख लीजिए. 4 1s are 4. No, it is not a factor. So we will not select it. क्लियर? आगे बढ़ते हैं 6, 4. क्या इसे हम सेलेक्ट करेंगे? यहां पे देखिए ये 6 तो 4 से ग्रेटर हो गया, बट हमें चाहिए A इज लेस देन B. क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नो, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट दैट इज 4, ओके 6, 4 हमने सेलेक्ट किया. उसके बाद 6, 6 को क्या हम सेलेक्ट करेंगे? नो, वी विल नॉट सेलेक्ट इट बिकॉज यहां पे देखिए दोनों वैल्यू सेम हो गए. कंडीशन क्या था? दैट A शुड बी लेस देन B. दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन द सेकेंड एलिमेंट. ओके, अंडरस्टूड. आगे देखिए 6, 18 को क्या हम सेलेक्ट करेंगे? यस, यू विल सेलेक्ट दिस बिकॉज 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18 एंड ऑल्सो 6 इज लेस देन 18. क्लियर?
नाउ 6,27 को हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 27. नाउ 6,54 को क्या हम सेलेक्ट करेंगे? देखिए 6 इज लेस देन 54. नाउ व्हाट वी हैव टू चेक, पहला कंडीशन तो ट्रू है, दूसरा कंडीशन क्या, दैट इज 6 अ फैक्टर ऑफ 54. यू कैन डिवाइड इट, 6 9s are 54. Okay, means 6 is a factor of 54. Then we will select this ordered pair. Now after that 9,4, no, rejected because यहाँ पे देखिए A should be less than B, but यहाँ तो A वो B से greater है, then we will not select it. After that 9,6 not rejected. 9,18 देखिए selected because 9 is less than 18. First condition is satisfied. The second condition, is 9 a factor of 18? Yes, 9 is a factor of 18 because 9 into 2 is 18. Okay, so we will select it. 9,27, yes, it is also selected because 9 is a factor of 27 and 9 is less than 27. So again it is selected. Now at last 9,54. Yes, it is also selected because 9 is less than 54 and 9 is a factor of 54. Okay, clear? So this is the set of all the ordered pairs which has satisfied both the conditions. What was the first condition? That A must be a factor of B and value of A should be less than B. Okay, यहाँ पे and mention है ना, and का मतलब क्या आता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी यहाँ हम इस ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हम लोगों ने लिखे हैं, दैट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेटिस्फाइड बोथ दीज कंडीशंस. दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स हियर. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5. टोटल 5 एलिमेंट्स गिवन है सेट ए में और S इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन x, y represents an ordered pair such that x belongs to capital A and y belongs to again capital A. It means जो ordered pair हम लोग यहाँ बनाएंगे वहां पे जो पहला एलिमेंट होगा that will be from set A and the second element will again be from set A. Okay, clear? So find the ordered pairs which satisfy the condition given below. Okay, so first condition के अकॉर्डिंग आपको ordered pair select करने हैं, उसके बाद second condition के अकॉर्डिंग ordered pairs select करने हैं. So what is the first condition? X plus y should be less than 5. Okay, set A को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 5. Set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so we have to find out the ordered pairs. Okay, then we will find out. यहाँ से देखिए हम 1 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिर 1 सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, x प्लस वाई, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स में जो एलिमेंट्स आए हैं आपको उन्हें ऐड करना है और अगर उनका वैल्यू 5 से कम है देन आपको उन्हें सेलेक्ट करना है. x प्लस वाई इज लेस देन 5. सो 1, 1. आप जब इन दोनों को ऐड करोगे देन वैल्यू क्या आता है 2 एंड 2 इज लेस देन 5. सो द कंडीशन इज सेटिस्फाइड. देन वी विल इंक्लूड 1, 1. आफ्टर दैट 1, 2 because 2 plus 1 is 3 and 3 is less than 5. After that 1, 3. Okay, 1, 3 because 3 plus 1 is 4 and 4 is less than 5. So again we will select this ordered pair. After that 1, 4 को क्या हम select करेंगे, 4 plus 1 is 5. So 5 is equal to 5. It is not less than 5. Then we will not select it. और ये लास्ट वाला देखिए 1, 5, इसे तो हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते बिकॉज 5 plus 1 6 होता है और 6 जो है दैट इज ग्रेटर देन 5. इट इज नॉट लेस देन 5. ओके, समझ आ गया आप लोगों को इसे अप्रोच कैसे करना है. नाउ 2, 1 दोनों को ऐड करिए. अभी आप x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स करो, ऑब्वियसली दोनों के रिजल्ट्स तो सेम ही होंगे. सो 2 plus 1 is 3, 3 is less than 5. 2 plus 2 मतलब 2, 2 ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है. देन 2 plus 2 आप जब परफॉर्म करोगे तो वैल्यू 4 आता है. 4 is less than 5. Then you will include this ordered pair. After that, देखिए 2, 3. So 2 plus 3 is what? 2 plus 3 is 5. So 5 is equal to 5. So you will not include it.
2,4 और 2,5 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज देखिए 2,4 और 2,5 जो है इसे आप ऐड करो, 2 + 4 is 6 एंड 2 + 5 is 7. सो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है. बोथ दीज वैल्यूज आर ग्रेटर देन 5. ओके, सो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो विल नॉट इंक्लूड दिस ऑर्डर्ड पेयर. आफ्टर दैट 3,1 we will select 3,1 because 3 + 1 is 4 and 4 is less than 5. उसके बाद देखिए 3 + 2 आप जब परफॉर्म करोगे, मतलब 3,2 ऑर्डर्ड पेयर में 3 + 2 हम करेंगे तो इट इज इक्वल टू 5. सो इट इज नॉट लेस देन 5, सो विल नॉट सेलेक्ट इट. 3,3 को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, 3,4 को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे एंड 3,5 को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे. क्लियर है? आगे देखिए 4,1 को क्या हम सेलेक्ट करेंगे. देखिए 4 + 1 होता है 5 और 5 इज इक्वल टू 5, इट इज नॉट लेस देन 5, देन वी कांट सेलेक्ट इट. 4,2 को भी नहीं करेंगे बिकॉज 4 + 2 6 होता है और 6 इट इज ग्रेटर देन 5. 4,3 को भी नहीं करेंगे, 4,4 को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, 4,5 को भी नहीं करेंगे सेलेक्ट. और यहाँ पे 5 के साथ जो भी पेयर्स आप बनाओगे, देखिए जैसे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 एंड 5,5, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को जब आप ऐड करोगे, मतलब उनके एलिमेंट्स को ऐड करोगे, देन वैल्यू ऑलवेज 5 से ज्यादा आएगा. देन ये फर्स्ट कंडीशन जो मेंशन था, इसमें टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स वी हैव सेलेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + y इज ग्रेटर देन 8. यहां पे थोड़ा कंडीशन चेंज है. अगेन सेट a को यहां पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5. सेट a को फिर से एक बार लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5. ओके, so we have to select the ordered pairs. ओके, स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट करना. 1,1 क्या हम इसे सेलेक्ट करेंगे? देखिए 1 + 1 2. 2 जो है वो 8 से, क्या 8 से वो छोटा है ना, बट हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए? x + y का जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 8. सो 2 इज लेस देन 8, सो वी कांट सेलेक्ट इट. ओके, उसके बाद देखिए यहां पे सारे वैल्यू दैट 1,2, 1,3, 1,4 एंड 1,5. यहां पे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स आप लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इन सारे केसेस में आप जब इनको ऐड करोगे, ये लास्ट वाला केस देखिए ना, 1,5 को देखिए, तो 5 + 1 कितना होता है? 6, और 6 इज लेस देन 8, इट इज नॉट ग्रेटर देन 8. ओके, तो हमें ऐसा वैल्यू चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 8. देखिए 2 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने का कोई भी फायदा नहीं है. देख सकते हैं आप, देखिए 2,1, 2,2 4 आएगा, 2,3 कितना आएगा? 3 + 2 5, 2,4 4 + 2 कितना होता है? 6, 2,5. सो 2,5 सेलेक्ट करेंगे हम लोग, मान लेते हैं. सो ऐड करिए दोनों वैल्यूज को, 2 + 5 कितना होता है? 7, और 7 इज लेस देन 8, सो अगेन वी विल नॉट सेलेक्ट इट. आगे देखिए 3,1 को भी नहीं करेंगे, 3,2 को भी नहीं करेंगे, 3,3 को भी नहीं करेंगे, 3,4 को भी नहीं करेंगे, 3,5 क्या इसे करेंगे? देखिए 3,5, 3 + 5 इज व्हाट? 8. सो 8 इज नॉट ग्रेटर. देखिए 8 यहां पे हमने लिखा, सो क्या 8 इज ग्रेटर देन 8? नो, इट इज इक्वल टू 8. सो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो वी विल नॉट सेलेक्ट इट. सो अभी 4 के लिए देखते हैं. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. एक ऑर्डर्ड पेयर हमें यहां पे मिलेगा. देखिए 4,5, बिकॉज 4 + 5 इज 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 8. ओके, तो एट लास्ट हमें एक ऑर्डर्ड पेयर तो मिला कम से कम. चलिए, बहुत अच्छी बात है. फिर अब 5 के साथ पॉसिबिलिटीज बनाते हैं. 5,1, 5,2, 5,3. 5,3 आप अगर सेलेक्ट करोगे, ऐड करिए दोनों वैल्यूज को, 8 आता है. सो 8 इज नॉट ग्रेटर देन 8, इट इज इक्वल टू 8. नाउ 5,4 को आप सेलेक्ट करोगे. यस, वी विल सेलेक्ट इट बिकॉज 5 + 4 इज 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 8. यहां पे देखिए 5,5 क्या आप इसे सेलेक्ट करोगे? यस, बिकॉज 5 + 5 इज 10 एज 10 इज ग्रेटर देन 8. सो यहां पे देखिए हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आए, 4,5, 5,4 एंड 5,5.
क्लियर, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? अ रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B, ओके, एज फॉलोज। यहां पे देखिए ये एक ऑर्डर्ड पेयर मेंशन्ड है, x, y रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब x, y एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है और ये ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन R में प्रेजेंट होगा, ओके। और यहां पे एक रिलेशनशिप देखिए, x डिवाइड्स y, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए, ओके। देन व्हाट वी हैव टू डू, एक्सप्रेस R, दैट इज अ रिलेशन, as a set of ordered pairs and determine the domain and the range of R, okay. So let's perform। पहले सेट A को यहां हम लोग लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5। सेट B में कौन से एलिमेंट्स हैं? 3, 6, 7, 10, ओके। यहां पे देखिए ये मेंशन है दैट अ रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, मतलब सेट A टू सेट B। इसका ये मतलब हुआ दैट आपके जो ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन R में प्रेजेंट होंगे, यहां पे जो पहला एलिमेंट है दैट विल बी फ्रॉम सेट A एंड द सेकेंड एलिमेंट विल बी फ्रॉम सेट B, ओके। देखिए ये वाला पॉइंट दैट X बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड Y बिलोंग्स टू कैपिटल B, ये बहुत सारे क्वेश्चन में मेंशन भी रहता है और बहुत सारे क्वेश्चन से मेंशन नहीं रहता है। देन आपको तुरंत समझ जाना है दैट ये वाला पॉइंट दैट इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, देन फर्स्ट एलिमेंट विल बिलोंग टू सेट A एंड द सेकेंड एलिमेंट विल बिलोंग टू सेट B, ओके। तो रिलेशन R हम लोग बनाते हैं, देन क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट यहां से सेलेक्ट करेंगे और दूसरा एलिमेंट यहां से। सो 2, 3 को क्या हम सेलेक्ट करें? अभी 2 देखिए 3 को डिवाइड कर सकता है? नो, इट कांट डिवाइड। उसके बाद देखिए 2, 6 को क्या आप सेलेक्ट करोगे? 6 डिवाइड बाई 2, क्या इसे ये डिवाइड करता है? यस, परफॉर्म करके देख लीजिए। 2, 3 6, तो डिवाइड तो किया, रिजल्ट आया, ओके, अंडरस्टूड। नाउ यहां पे डिवाइड करने का जो मतलब है, कंप्लीटली डिवाइड से इसका मतलब है दैट x शुड कंप्लीटली डिवाइड y, मतलब रिमाइंडर वहां 0 आना चाहिए, ओके। यहां पे हमने किस ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट किया? 2, 6। आगे देखिए 2, 7 को क्या हम सेलेक्ट करेंगे? नो, बिकॉज 2 कैन नॉट डिवाइड 7। आफ्टर दैट 2, 10, यस वी विल सेलेक्ट इट बिकॉज 10 डिवाइड बाई 2 इज हाउ मच? 5, ओके। सो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिले। सो 2 के साथ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अभी 3 के साथ फाइंड आउट करते हैं। 3, 3, yes, because 3 divided by 3 is 1, so x divides y. After that 3, 6, क्या इस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग रिलेशन R में इंक्लूड करेंगे? yes, you will include it because 6 divided by 3 is 2, means 3 divides completely 6, okay। 6 divided by 3 आप जब परफॉर्म करोगे तो वैल्यू कितना आता है? वो 2 के इक्वल आता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी? ओके, आगे बढ़िए। 3, 7 को क्या आप इंक्लूड करेंगे? नो, बिकॉज 7 डिवाइड बाई 3 आप जब परफॉर्म करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, मींस इट कैन नॉट कंप्लीटली डिवाइड। 3, 10 क्या आप इसे इंक्लूड करोगे? नो, 3 कैन नॉट डिवाइड 10। नेक्स्ट अभी 4 के साथ बनाते हैं। 4, 3, नो, इट कांट डिवाइड। 4, 6 अगेन इट कांट डिवाइड। 4, 7 नॉट पॉसिबल। 4, 10 अगेन नॉट पॉसिबल। उसके बाद देखिए 5, 3 नॉट पॉसिबल। 5, 6 नॉट पॉसिबल। 5, 7 नॉट पॉसिबल। बट एट लास्ट देखिए 5, 10 10 डिवाइड बाई 5 कितना होता है? वो 2 के इक्वल होता है। इट मींस 5 कैन डिवाइड 10 कंप्लीटली, ओके। सो रिलेशन R हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। सो यहां पे देखिए इसका आंसर है एक्सप्रेस R एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ओके। So we have got the first answer, and what is the next question? And determine the domain and range of R. So domain बहुत ही सिंपल है। डोमेन क्या बताया था मैंने? The set of all the elements। ये रिलेशन R में देख सकते हैं आप ऑर्डर्ड पेयर्स। इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से आप फर्स्ट एलिमेंट्स को सेलेक्ट कीजिए। 2 फिर से आए, इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे हम। 3,
यहाँ पे देखिए 3 फिर से है, वी विल नॉट सेलेक्ट इट. यहाँ पे देखिए 5. So this is the domain of a relation R. What we have done, we have selected the first elements from the relation R. First elements कहाँ से select किए? Relation R में जो भी ordered pairs present है वहां से हमने first element को select किया, सारे first elements को. और range क्या होता है? Range भी बहुत easy है. Range निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Ordered pairs में से second elements को select करेंगे. 6, 10, 3, 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज 6 तो हमने ऑलरेडी लिखा है. उसके बाद देखिए 10, सो 10 भी हमने यहां लिखा है. ओके, सो डोमेन भी निकल गया, रेंज भी निकल गया, रिलेशन आर भी निकल गया. सो वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ओके, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स शुड बी लेस देन वाई. यहां पे एक रिलेशनशिप गिवन है, देखिए एक्स शुड बी लेस देन वाई. सो एक्स कॉमा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट का जो वैल्यू है वो सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए. इट शुड बी स्मॉलर. ओके, यहां पे यही कंडीशन गिवन है. सो सेट ए को यहां हम लोग लिख लेते हैं. सेट ए मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1, 4, 5. क्लियर. रिलेशन आर डिफाइन करना में रिलेशन मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स हमें निकालने हैं. ओके, तो निकालते हैं. देखिए हम लोग, सो 1, 1, क्या इसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं? हम इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज कंडीशन क्या है? x शुड बी लेस देन y. मतलब जो पहला एलिमेंट का वैल्यू वो दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए. सो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग. दोनों वैल्यूज तो सेम है. उसके बाद देखिए 1, 4, yes, 1 is less than 4, so it is satisfying the condition. After that 1, 5, it is also satisfying because 1 is less than 5. उसके बाद देखिए 2, 1 को हम सेलेक्ट करेंगे? नहीं, हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज 2, 1 में देखिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इट इज ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट, सो वी विल नॉट सेलेक्ट इट. उसके बाद देखिए 2, 4 और 2, 5 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे. Because 2 is less than 4 and 2 is less than 5. After that 3, 1 we will not select it. 3, 4 को हम लोग select करेंगे because 3 is less than 4 and 3, 5 को भी select करेंगे because 3 is less than 5. Clear? 4, 1 को क्या हम select करेंगे? नहीं, हम इसे select नहीं करेंगे. उसके बाद 4, 4 को हम select करेंगे? No, हम इसे select नहीं करेंगे because यहाँ पे देखिए 4, 4 पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए बट दोनों वैल्यूज यहाँ पे सेम है. और उसके बाद लास्ट में देखिए 4, 5 इसे हम सेलेक्ट करेंगे. ओके, नाउ देखिए 5 के साथ कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स आप नहीं फॉर्म कर पाओगे. देखिए मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स तो बना सकते हैं बट उसे हम रिलेशन आर में पुट नहीं कर सकते बिकॉज x, y जो कंडीशन है इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. देखिए 5, 1 जो है, 5, 4 जो है और 5, 5 फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है, नॉट पॉसिबल. यहां पे भी देखिए फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है, 4 था यहां, सो 4, 5 तो 4 से बड़ा होता है. ओके, नाउ 5, 5 दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, सो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन. ओके, सो यहां पे हमने देखिए फाइंड आउट कर लिया रिलेशन. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. सो डोमेन of R, domain is what? The set of all the first elements. 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज 1 तो हमने यहां पे इंक्लूड कर लिया. 2 यहां फिर से है, रिपीटेशन नहीं करेंगे. आगे देखिए 3, 4 मतलब 3 and 4. डोमेन फाइंड आउट कर लिया हमने. आफ्टर दैट रेंज ऑफ R. रेंज अभी हम निकालते हैं. सो रेंज इज व्हाट? द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट. देखिए 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5 मतलब 4, 5, 4, 5 यही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब 4, 5. और कोडोमेन हमें फाइंड आउट करना है. देन कोडोमेन मैंने बताया था आप लोगों को इज द होल सेट
कौन सा होल सेट? द सेकेंड सेट। देखिए यहां पे रिलेशन डिफाइंड है A to B, मतलब ये दूसरा वाला सेट होगा, इसी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। क्लियर है? तो सेट बी में देखिए 3 एलिमेंट्स है 1, 4, 5, सो दिस इज द कोडोमेन। अभी मान लेते हैं ये क्वेश्चन में गिवन होता दैट डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, देन जो दूसरा सेट है ए, इसे हम कोडोमेन बोलते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है दैट रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है या रिलेशन बी टू ए डिफाइंड है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन ए रिलेशन ऑन द सेट n of natural numbers defined by the relation a comma b एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है सच दैट a plus 3b is equal to 12। ओके, यहां पे कंडीशन देखिए, a plus 3b is equal to 12। ना इस कंडीशन को या इस इक्वेशन को आप लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। 12 माइनस 3b, ओके, मॉडिफाई किया हम लोगों ने। देखिए यहां क्या मेंशन है, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N मींस नेचुरल नंबर्स एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल M, मतलब स्मॉल b इज एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो यहां पे आप देख सकते हैं दैट ये गिवन नहीं है दैट डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, यहां पे ये मेंशन्ड है दैट डिफाइन ए रिलेशन ऑन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका ये मतलब है दैट जो पहला वाला सेट है, मान लेते हैं वो सेट A था, वो भी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और जो दूसरा सेट था वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यहां पे आप देख भी सकते हैं small a is the first element of the ordered pair and that belongs to natural numbers, and small b is the second element of the ordered pair and that also belongs to the set of natural numbers। ओके, सो पहले हमें रिलेशन डिफाइन करना है, उसके बाद डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है और कोडोमेन निकालना है। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो पहले में क्या करेंगे, a small a is what? It is the set of natural numbers। देन यहां हम क्या करेंगे, यहां हम सेट ये स्मॉल a को पहले हम 1 लेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर्स ऑलवेज 1 से स्टार्ट होता है। तो उसके बाद देखेंगे b का वैल्यू क्या आता है, या उल्टा भी आप कर सकते हो, b का वैल्यू आप 1 लो और उसके बाद चेक करो a का वैल्यू क्या आता है। ओके, देखिए सो b का वैल्यू हम जब 1 लेंगे तो यहां पे पुट करिए, a का वैल्यू क्या आएगा, a इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 1। सो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 9। ओके, सो एक ऑर्डर्ड पेयर हमें मिला। देखिए यहां पे हम इसे लिखते जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट a है और दूसरा एलिमेंट b है, मतलब 9,1 ये पहला ऑर्डर्ड पेयर हमें मिला। आगे देखिए b का वैल्यू हम 2 लेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, 12 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 6, 12 माइनस 6 तो 6 आया। ओके, कोई इशू नहीं है, 6,2। आगे बढ़िए, b का वैल्यू 3 लेते हैं हम लोग। सो a इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 3, सो 12 माइनस 9। सो 12 माइनस 9 इज व्हाट, कितना होता है, 3 होता है उसका वैल्यू। सो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट a था, सो 3,3। नेक्स्ट b कितना लेंगे, b 4 लेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर्स हमें लेना है एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट गोज अप टू व्हाट, इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से वो कंटिन्यूड रहता है। सो a इज इक्वल टू व्हाट, 12 माइनस 3 इंटू 4। सो 12 माइनस 3 इंटू 4 इज 12, सो 12 माइनस 12 इज व्हाट, 0। सो क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नो, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, देन क्या इस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे? नहीं, इस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज देखिए यहां पे ऑर्डर्ड पेयर जो आया, a का वैल्यू 0 आया और b का वैल्यू 4 हमने लिया था। ओके, देन यहां पे देख सकते हैं स्मॉल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मतलब ये भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये दूसरा एलिमेंट ये भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो ये 4 तो नेचुरल नंबर है, बट क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नो, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, अंडरस्टूड। एक और वैल्यू देख लेते हैं,
जब हम b को 5 के इक्वल लेंगे देन क्या आता है, b इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू व्हाट, 12 माइनस 3 इंटू 5. सो 12 माइनस 3 माइनस 5 और 15. सो 12 माइनस 15 इज माइनस 3. सो यहाँ पे देखिए अब नेगेटिव वैल्यूज आना स्टार्ट हो गए. मतलब आप b का वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करोगे तो इसका नेगेटिव वैल्यू और इंक्रीज होते जाएगा. यहां देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या आया, a माइनस 3 और b 5. सो 5 एक नेचुरल नंबर है बट माइनस 3 क्या एक नेचुरल नंबर है? नो, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. नाउ इस b के वैल्यू को आप जब फर्दर इंक्रीज करोगे देन इसका नेगेटिव वैल्यू भी इंक्रीज होगा. देखिए b आप जब 6 लोगे सो a क्या आएगा, a इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 6. ओके, देन a इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इंटू 3 इज 18. सो a इज इक्वल टू माइनस 6. ओके, देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में और वैल्यूज बढ़ते जा रहा है. माइनस 3 आया, माइनस 6 आएगा, फिर माइनस 9 आएगा, माइनस 12 आएगा. मतलब आप b का वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, ये a का वैल्यू और नेगेटिव होते जाएगा. ओके, देन क्या फर्दर हमें चेक करने का कोई भी जरूरत है? नहीं, फर्दर हम चेक नहीं करेंगे. ओके, क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को दैट फर्दर हम लोग क्यों चेक नहीं करेंगे? बिकॉज b का वैल्यू तो एक नेचुरल नंबर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं बट उसके अकॉर्डिंग जो a का वैल्यू आएगा दैट विल बी नॉट अ नेचुरल नंबर. ओके, क्लियर है. तो देखिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते. तो 3 ही ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले जिसमें b का वैल्यू हमने पहले 1 लिया था, फिर 2 लिया और फिर 3 लिया. सो रिलेशन r आप देख सकते हैं हमने डिफाइन कर लिया. नाउ वी विल फाइंड आउट द डोमेन. सो डोमेन ऑफ r इज व्हाट, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स 9, 6, 3. Range is what? Range is the set of all the second elements 1, 2, 3. Clear? Understood? Now what we have to find? We have to find out the codomain of R. Now यहाँ पे codomain क्या होता है? अगर कोई रिलेशन डिफाइंड होता है फ्रॉम A to B देन ये जो दूसरा सेट होता है इसी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं. देन ये जो रिलेशन था ये कहां से डिफाइंड था? ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. मतलब ये सेट ए भी, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था और ये जो दूसरा सेट बी था ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही था. देन ये दूसरा सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. देन कोडोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही हो जाएगा ना. या यू कैन ऑल्सो राइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अंडरस्टूड? क्लियर है पॉइंट ये वाला भी. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन आर गिवन बाय, यहां पे देखिए आर स्टैंड फॉर रिलेशन, ब्रैकेट ओपन है, x, y इज एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 6 डिवाइड बाई x. यहां पे देखिए y का वैल्यू क्या है? x प्लस 6 बाई x. ये गिवन है. ओके, वेयर x, y बिलोंग्स टू कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर्स एंड x शुड बी लेस देन 6. ओके, मतलब आपको क्या करना है? x का वैल्यू जो है वो 6 से लेस होना चाहिए और वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए. देन x का कौन सा वैल्यूज आप सेलेक्ट करोगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, क्लियर. तो इसे हम सॉल्व करते हैं. हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है. देन डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए हमें रिलेशन तो डिफाइन करना होगा. ऑर्डर्ड पेयर्स तो फाइंड आउट करने होंगे ना. उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से हम फिर पहले एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो वो डोमेन हो जाएगा और दूसरे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो वो रेंज हो जाएगा. ओके, सो अभी सॉल्व करते हैं. देखिए x का वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आता है? y इज इक्वल टू x1 6 बाई 1. सो 6 बाई 1 इज 6 एंड प्लस 1 दैट इज 7. ओके, सो ऑर्डर्ड पेयर देख सकते हैं आप x, y मतलब x पहला एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और y दूसरा एलिमेंट को. तो यहां पे हमने x 1 लिया तो y 7 आया. ओके, अंडरस्टूड. अभी लेते हैं x इज इक्वल टू 2. x इक्वल टू 2 लेंगे तो y देखिए क्या आएगा? 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2. 6 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट? 3 एंड 2 प्लस 3 इज व्हाट? 5. ओके, क्लियर. नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल टेक x इज इक्वल टू 3. तो y क्या आएगा? 3 प्लस 6 बाई 3. सो
6 by 3 is 2 and 3 plus 2 is what? 5. Now what we will do? We will take x is equal to 4. So y is equal to 4 plus 6 डिवाइड बाई 4. यहाँ पे देखिए कैंसिल नहीं होगा तो एलसीएम लेते हैं हम लोग. यहाँ पे 1 है, so 4 डिवाइड बाई 1 is 4 and 4 into 4 is 16. 4 divided by 4 is 1 and 1 into 6 is 6. So 16 plus 6 is how much? 22 by 4. Then when you will cancel, कितना आएगा वैल्यू? 2 1 is 2, 2 2 is 4. Then ये क्या y एक नेचुरल नंबर है? No, it is not a natural number. Then क्या इस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे? No, we will not select this ordered pair. ऐसा क्यों? देखिए, x is equal to 4 तो हमने कंसिडर किया. ओके, देन x इज अ नेचुरल नंबर, बट यहां जो y का वैल्यू आया है दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज 11 by 2. ओके, देन आप जब इसे डिवाइड करोगे 2 से, देन वो एक डेसिमल नंबर आएगा. सो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो वी विल नॉट सेलेक्ट दिस. तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स पहले हमें मिले हैं उन्हें लिख लेते हैं. दैट इज 1,7, 2,5, 3,5, ओके, 4,11 by 2 को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे. तो आगे क्या करते हैं, एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं. दैट इज द लास्ट वैल्यू. x के टोटल 5 वैल्यूज हमें लेने थे. x इज इक्वल टू 5. सो y का वैल्यू क्या होगा? 5 प्लस 6 बाई 5. अगेन देखिए 6 बाई 5 ये नंबर पूरी तरीके से कैंसल नहीं होगा. ओके, मीन्स ये एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए 5 and 1 का एलसीएम लेते हैं हम लोग. सो 5 डिवाइडेड 1 इज 5 and 5 into 5 is 25 प्लस 5 डिवाइडेड 5 is 1 and 1 into 6 is 6. तो 25 plus 6 is 31 by 5. So 31 by 5 क्या नेचुरल नंबर है? नो, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. When you will divide 31 by 5, then you will get a decimal number. Then इस ऑर्डर्ड पेयर को भी हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं. ओके, देन हमें यहां पे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स मिले रिलेशन R में. देन अभी हम बहुत ही इजीली डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं. डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ अ रिलेशन R. डोमेन ऑफ अ रिलेशन R. Select the first elements 1, 2 and 3. Now what is the range? Just select the second elements. 7, 5, 5. मतलब 7,5. Okay, so we have find out the domain and we have find out the range. Next question. The figure shows a relation between the sets P and Q. Write this relation in set builder form, in roster form, and what is its domain and range. Okay, देखिए यहाँ पे फिगर गिवन है ना, ये आपका सेट P है एंड दिस इज सेट Q. ओके, तो यहाँ पे एक एरो डायग्राम आप लोग देख सकते हैं. दिस इज व्हाट? दिस इज एन एरो डायग्राम. यहां पे देखिए ये एरो जो है 9 से स्टार्ट हुआ है और एंड आपका कहां पे हुआ है? 3 पे जाके. यहां पे देखिए 9 पे स्टार्ट हुआ है और -3 पे एंड हुआ है. सो हमें क्या करना है, इस रिलेशनशिप को सेट बिल्डर में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उनका डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है. तो पहले हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसे कैसे लिखेंगे. तो देखिए 9,3 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं? यस, इट इज अ ऑर्डर्ड पेयर. यहां पे देखिए 9,-3. क्लियर? उसके बाद देखिए 4 से स्टार्ट हुआ है, कहां पे एंड हुआ? 2 पे. इट मींस 4,2 इज एन ऑर्डर्ड पेयर. 4,-2 मतलब 4,-2 इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर. आफ्टर दैट 25,5. 25,-5. It is also an ordered pair. क्लियर है ना? तो यहां पे देखिए इस रिलेशन को जो बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ था उसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा. तो एक आंसर तो हमें मिला दैट इस रिलेशन को मैंने रोस्टर फॉर्म में तो लिख दिया. अभी एक रिलेशन ढूंढिए बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट. वो रिलेशन हमें मिलेगा
तभी हम इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा होगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। इट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज द स्क्वायर। यहां पे देखिए 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 -3 का स्क्वायर आप जब परफॉर्म करोगे तो वो भी 9 के इक्वल ही आ रहा है। इट मीन्स जो पहला एलिमेंट है दैट इज x इज इक्वल टू y का स्क्वायर। यही चीज है ना, x यहां पे देखिए क्या है 9 और y यहां क्या है 3 का स्क्वायर। x इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट एलिमेंट एंड y इज रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड एलिमेंट। तो यही रिलेशन तो है ना, x इज इक्वल टू y का स्क्वायर। यहां पे भी चेक करिए, देखिए x का वैल्यू कितना है 9 है और y है कितना -3 का स्क्वायर। आप जब परफॉर्म करोगे तो 9 आएगा कि नहीं? बिल्कुल समझ आ गया आप लोगों को। तो हमें ये रिलेशनशिप मिल गया बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। ये रिलेशनशिप सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में सेटिस्फाई होने चाहिए। यहां पे भी आप चेक कर लीजिए, x देखिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर मैंने बोला, सो x क्या है 4 और y क्या है 2 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4, सेटिस्फाइड। यहां पे भी चेक करिए 4 इज इक्वल टू 4 -2, तो x के जगह पे 4 है और y के जगह पे -2 का स्क्वायर। सो 4 इज इक्वल टू 4, सेटिस्फाइड, अंडरस्टूड। सो अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें रिलेशनशिप मिल गया है बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। So what we will write, x comma y, where x comma y represents an ordered pair. Then what you will write, that x comma y belongs to capital R such that x is what, x is equal to y square. Okay, clear है। एंड एक चीज और आपको क्या लिखना है, that x belongs to capital P and y belongs to capital Q. ओके, देन यहां पे देखिए इस रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर इसी रिलेशन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज? यू कैन इजिली फाइंड आउट द डोमेन। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। नाउ ये डोमेन और रेंज आप फिगर को देख के भी निकाल सकते हो। देखिए यहां पे 9 कनेक्टेड है ना, मींस आपको पहले वाले सेट को सिर्फ देखिए 9 कनेक्टेड है, 2 बार कनेक्टेड है, बट क्या हम इसे 2 बार लिखेंगे? नो, वी विल नॉट रिपीट इट। देखिए 9, 4, 25। सो बहुत सिंपल है, ये 9, 4, 25 ये आपका डोमेन हो गया। इसे आप रोस्टर फॉर्म में भी देख लीजिए, देखिए 9, 9, 4, 4, 25, 25। सो 9, 4, 25। तो आप यहां से फाइंड करो, नहीं तो यहां से फाइंड करो, दोनों केसेस में आंसर तो सेम ही आने हैं। Range, what is the range? Range is all the set of second elements. Range is what? Range is the set of all the second elements. Then यहां पे फिगर में देखिए 5 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है। अभी देखिए 1 कनेक्टेड नहीं है, देन 1 को आपको इंक्लूड नहीं करना है रेंज में। देखिए -2 कनेक्टेड है, यहां से -3 भी कनेक्टेड है, -5 भी कनेक्टेड, देन 1 को छोड़ के आप सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए। 5, 3, 2, -2, -3, -5। नाउ इसी चीज को आप यहां पर रोस्टर फॉर्म से भी लिख सकते हैं। देखिए 3, -3, 3 प्रेजेंट है, -3 भी प्रेजेंट है। यहां देखिए 2, -2, 2 प्रेजेंट है, -2 भी प्रेजेंट है। 5 एंड -5, 5 प्रेजेंट है और -5 भी प्रेजेंट है। तो या तो आप डायग्राम से फाइंड करिए, नहीं तो यहां से फाइंड करिए, दोनों केसेस में रिजल्ट तो सेम ही आएंगे। ओके, अंडरस्टूड this question. Let's move towards the next question. Let set A is equal to 1, 2, 3, 5, 6. Total 6 elements हैं set A में. So define a relation R on a set A. यहाँ पे देखिए define a relation on a set A. यहाँ पे एक ही चीज mentioned है. It means that define a relation from set A to set A. ये यहाँ पे given है. Clear है? On a set A अगर mentioned रहेगा then इसका यही मतलब होता है that we have to define a relation from set A to A.
मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी हम सेट ए से ही सेलेक्ट करेंगे और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो भी हम लोग सेट ए से ही सेलेक्ट करेंगे। ओके, नाउ ये क्वेश्चन देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले आई थिंक हम लोगों ने सॉल्व किया था, बट यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट हमें क्या करना है, वी हैव टू डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। ओके, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेट ए में लिख देते हैं एलिमेंट्स को 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, then we have to depict this relationship using an arrow diagram. यहाँ पे फिगर हम लोग बना लेते हैं, ये फर्स्ट फिगर आपका, ये सेकंड वाला फिगर। ओके, थोड़ा और अच्छे से हम लोग फिगर को बना लेते हैं। ओके, ये भी सेट ए है, ये दूसरा सेट भी ए है। यहां पे देखिए 6 एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो यहां पे रिलेशनशिप को देखिए क्या गिवन है, रिलेशन आर इज एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स जो है फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का और वाई सेकेंड एलिमेंट है। सो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब जो सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए वो पहले एलिमेंट से एक ज्यादा होना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए ये एक्स वाला है और ये दूसरा वाला वाई वाला है। देन आप इसे एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, देखिए 1, 1, क्या दोनों एलिमेंट्स, यहाँ पे देखिए सेकेंड एलिमेंट क्या फर्स्ट एलिमेंट से एक ज्यादा है, नो इट इज नॉट। उसके बाद देखिए 1, 2, यस ये ज्यादा है बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1, 2 एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए दूसरा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक ज्यादा है, x प्लस 1, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 मिलेगा। क्लियर। उसके बाद अगर आप देखोगे 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हम नहीं लिख सकते बिकॉज 1, 3 है, 1, 4 है, 1, 5 एंड 1, 6। यहाँ पे देखिए दूसरा एलिमेंट 1 से 2 ज्यादा है, ये 4 और यहाँ 1 मतलब 3 ज्यादा है, 1, 5 मतलब 4 ज्यादा है, 1, 6 मतलब 5 ज्यादा है। देन वी कांट इंक्लूड दिस, देन इसे हम एरो डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। अभी देखिए 2 के साथ चेक करते हैं, 2, 1 नो, 2, 2 नो, 2, 3 देखिए इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, बिकॉज 3 जो है वो 2 से एक ज्यादा है। उसके बाद 2, 4, 2, 5, 2, 6 को चेक करने का जरूरत नहीं है बिकॉज वैल्यूज देखिए बढ़ते ही जाएंगे। यहाँ पे एक ज्यादा था तो यहाँ आप जब मूव करोगे तो 2 ज्यादा हो जाएगा, फिर 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, कांट सेलेक्टेड। नाउ 3, 1 नॉट सेलेक्ट, 3, 2 वी कांट सेलेक्ट, 3, 3 वी कांट सेलेक्ट, बट 3, 4 को हम सेलेक्ट करेंगे बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3 बाई 1। उसके बाद देखिए 4, 5 को हम सेलेक्ट करेंगे बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 4 बाई 1, और एक ऑर्डर्ड पेयर हमें और मिलेगा दैट इज 5, 6 बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5 बाई 1। नाउ अभी आप और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें नहीं ढूंढ सकते हो बिकॉज और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन। We have to find out what? We have to find out the domain. तो मैंने क्या बोला था, domain is what? The set of all the first elements. तो यहाँ पे देखिए ये पहला सेट है ना, तो यहाँ पे देखिए कौन से एलिमेंट्स हैं जो कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए 6 जो है वो कनेक्टेड नहीं है, मतलब 6 पहला, देखिए मतलब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एंड दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। मतलब हमारे पास ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 6 है। ओके, क्लियर है। और यहां पे देख सकते हैं आप 1 यहां पे कनेक्टेड नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें जो दूसरा एलिमेंट है वो 1 के इक्वल है। क्लियर है ना पॉइंट।
सो डोमेन हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 कनेक्टेड नहीं है, उसके अलावा जो भी 5 एलिमेंट्स हैं दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, दिस विल बिलोंग टू द डोमेन। अगर यहां से आपको फिगर से समझ नहीं आता है देन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करो, इसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो, देन रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, देन उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से आप फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट कर लोगे, देन बहुत इजीली आप डोमेन भी फाइंड आउट कर सकते हो। और देखिए रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे देखिए 1 कनेक्टेड नहीं, 1 के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट्स यहां कनेक्टेड दिख रहे हैं, इट मींस ऑल दीज एलिमेंट्स विल बिलोंग टू द रेंज दैट इज 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 and 6. Understood? Now we have to find out the codomain. So as I have told that what is codomain? Codomain is the set of all second set. Like relation is defined from set A to A. यानी ये जो दूसरा सेट है इसी सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। ओके, सिंपल है। देन कोडोमेन ऑफ R is what? द सेकेंड सेट। तो सेकेंड सेट में देखिए कितने एलिमेंट, टोटल 6 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो डोमेन भी हमने फाइंड आउट कर लिया, रेंज भी फाइंड आउट कर लिया, कोडोमेन भी फाइंड आउट कर लिया, और ये रिलेशन को हमने एरो डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट भी कर लिया। ओके, सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। गिवन R is equal to, R stands for relation, x, y represents an ordered pair such that x, y belongs to capital W. Capital W represents the set of whole numbers, comma, यहाँ एक कंडीशन देख सकते हैं या इसे आप एक रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, देन आपको यहाँ पे डोमेन फाइंड आउट करना है और रेंज फाइंड आउट करना है। देन उसके लिए सबसे पहले आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, मतलब रिलेशन में कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे और कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं आएंगे। इन देखिए इस कंडीशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, नाउ अगर मैं इस x के वैल्यू को अगर हम 5 सेलेक्ट करें दैट इज 5 का स्क्वायर, और इस y के वैल्यू को अगर हम 0 सेलेक्ट करें देन क्या वो 25 की इक्वल आएगा। देखिए 5 स्क्वायर 25 होता है और 0 स्क्वायर तो 0 होता है, तो 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 25, और इधर भी 25, इट मीन सेटिस्फाइड। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गया है, यहाँ पे x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0 है। नाउ इसी चीज को अभी आप अपोजिट करिए। अपोजिट करने का मतलब अभी आप y का वैल्यू 5 लीजिए और x का वैल्यू 0 लीजिए, लाइक 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए ये भी 25 के इक्वल ही आएगा, बिकॉज 5 का स्क्वायर इज 25 और 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 प्लस 25 इज 25, और इधर भी 25, इट मीन्स सेटिस्फाइड। सो 0,5। अंडरस्टूड। नाउ एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, अगर आप लोगों को याद होगा 3, 4, 5। सो यहां पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है। अब चेक करके देख लो, देखिए 3 स्क्वायर 9 होता है और 4 स्क्वायर 16 होता है। सो 9 प्लस 16 इज 25। सो जब हम x का वैल्यू 3 लेंगे और y का वैल्यू 4 लेंगे देन इसका वैल्यू 25 के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, दैट इज 3, 4। नाउ अभी आप क्या करो, इसी चीज में अभी आप x को 4 लो और y को 3 लो। ओके, देखिए x को अभी हम 4 लेते हैं और y को 3 लेते हैं, देन वो भी 25 के इक्वल आएगा। 4 स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 स्क्वायर होता है 9, सो 16 प्लस 9 इज 25। सो इधर भी 25 है, इट मीन्स सेटिस्फाइड। सो 4, 3। ओके, अंडरस्टूड। नाउ इन सारे वैल्यूज के अलावा आप और कोई भी वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। यहां पे देखिए मेंशन क्या था, दैट x, y बिलोंग्स टू कैपिटल W, मतलब होल नंबर्स, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे वैल्यूज को आप इंक्लूड कर सकते हो। नाउ मान लेते हैं ये क्वेश्चन में ये गिवन होता दैट x, y बिलोंग्स टू इंटीजर्स।
ओके देन आप क्या करते, यहां पे आप -5 को भी इंक्लूड कर सकते थे, बिकॉज -5 का स्क्वायर भी 25 के इक्वल ही होता है। देन आपको और भी ऑर्डर्ड पेयर्स मिल सकते थे। ओके यहां पे देखिए आप -5 लेते, इसको 0 लेते, यहां 0 लेते, यहां पे -5 लेते, और भी ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिल सकता था। फिर यहां पे देखिए -3 लेते, फिर 4 लेते। ओके और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बनते, बट यहां पे जो कंडीशन गिवन था दैट x, y बिलोंग्स टू होल नंबर्स, उसके वजह से यहां पे हमें सिर्फ 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मिले। देन वी विल फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। बहुत ईजी है। डोमेन इज व्हाट? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स 5, 0, 3, 4। ओके ये सारे एलिमेंट डोमेन में आए, और रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 0, 5, 4 एंड 3। सो डोमेन भी हमने निकाल लिया और रेंज भी निकाल लिया ना। एक चीज आप लोगों को दिख रहा होगा दैट डोमेन में जो एलिमेंट्स आए हैं वही सारे एलिमेंट्स रेंज में भी आए हैं। देन व्हाट यू विल राइट दैट देयरफॉर डोमेन ऑफ आर is equal to range of R. Okay, understood? Now let's move towards the last and final question of today's class. If R2 is equal to x comma y, R2 represents a relation, x comma y represents an ordered pair. यहाँ पे देखिए x comma y are integers. Okay, यहाँ पे देखिए integers आ गया है। लास्ट क्वेश्चन में x comma y belongs to whole numbers, but यहाँ पे x comma y belongs to integers, and x square plus y square is equal to 64. Okay, then यहाँ पे देखिए हमें रिलेशन यहाँ फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट नहीं करना है। then x square plus y square is equal to 64. then अगर आप लोगों को याद होगा 8 स्क्वायर का वैल्यू 64 होता है। ओके then अगर मैं इस x को 8 लूं और y को 0 लूं, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? यस, बिकॉज 8 स्क्वायर 64 और 0 स्क्वायर तो 0 होता है, तो 64 प्लस 0 is 64 और इधर भी 64, मतलब सेटिस्फाइड। तो इस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला एलिमेंट क्या होगा? 8 और दूसरा एलिमेंट होगा 0। उसके बाद देखिए अभी इंटरचेंज करिए, x को 0 लीजिए और y को 8 लीजिए, 64। क्लियर है? तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर एक फॉर्म करेगा ना। सो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? 0, 8। नाउ अभी ये ध्यान देना है दैट x, y आर इंटीजर्स, मतलब यहां पे मैं -8 भी इंक्लूड कर सकता हूं, बिकॉज -8 का स्क्वायर भी 64 के इक्वल ही होता है। सो -8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। क्या ये पॉसिबिलिटी है? यस, बिकॉज -8 स्क्वायर इज 64 और 0 स्क्वायर भी 0 होता है। 64 प्लस 0 इज 64 और इधर भी 64, मतलब सेटिस्फाइड। सो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो देखिए माइनस लेने से क्या हुआ? ये एक नया ऑर्डर्ड पेयर हमें मिला। क्लियर है? और एक और ऑर्डर्ड पेयर में मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने x को 0 लिया था और y को 8 लिया था, देन यहाँ पे हम 8 के जगह पे -8 लेंगे, देन वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल जाएगा, दैट इज 0, -8। सो यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं? 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। सो वी हैव फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो आज के क्लास में इतना ही। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास we will start the functions. Okay, so everyone, thank you very much.